Assalamu alaikum. This is Hifza Waheed. In the last video from Physics 9702, we have solved some structured questions. Uh, this video is also the continuation from the same series. In this video, we'll solve a few more questions from the first 5 chapters. So let's get started. It says figure shows the velocity time graph for an object moving in a straight line. C, at time t equals 0, velocity of object is 0, and at the end of the journey, the object's velocity is v. And the object took time t to change this velocity. Now they are asking you to determine an expression in terms of u, v, and t for the area under the graph. See, this is the area under the graph. अब या तो मैं डायरेक्टली ट्रेपीजियम के लिए फार्मूला लगा ले, या जो मुझे आसान लगता है टेस्ट, आप पहले इसको ब्रेक कर ले एक ट्राइंगल में एंड देन एक रेक्टेंगल में, एंड दोनों के लिए अलग अलग एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर लें बिकॉज एरिया इज अ स्केलर, राइट। तो अगर मुझे टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मैं ये एरिया फाइंड आउट कर लूं रेक्टेंगल का। कैसे आता है? लेंथ एंड हाइट। लेंथ इज t minus 0 and height is u minus 0, right? This is area of rectangle. Then मुझे पता है ये जो remaining part है this is a triangle. तो मैं इस rectangle के एरिया के अंदर अगर triangle का एरिया ऐड कर दूं तो मुझे total एरिया पता चल जाएगा, right? How do we find the area of triangle? It is half times base of triangle, which is t minus 0 times the height of triangle. See, it started at u and it ended at v. So I should be writing v minus u. 0 जहां से माइनस हो रहा है, of course it would not make any difference to the expression. तो बस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें. You will write ut या tu, up to you, plus half expression के हिसाब से v minus u times t, or you can also write t times v minus u, right? This is the expression for the area under the curve. It's ut plus half v minus u times t. This is part 1. State the name of the quantity represented by the area under the graph. Velocity time graph का area क्या बताता था? We have already discussed कि ये displacement के बारे में information देता है. Whereas the slope of the graph will give you information about the acceleration of the object. Then आपसे कह रहे हैं a ball is kicked with a velocity of 15 meters per second, and see this velocity is not in x or only in y direction, right? This is the resultant velocity. इसका कुछ ना कुछ x component होगा and इसका कुछ ना कुछ y component होगा. At an angle 60 degree to the horizontal ground, the ball then strikes a vertical wall at the instant when the path of ball becomes horizontal. By considering the vertical motion of the ball, calculate the time it takes to reach the wall. Time the ball took to reach the wall is the time जिसे मैं कहूंगी is to reach the maximum height, right? जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में एक आध बेसिक डेरिवेशंस की थी, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट की, और मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन, वहीं पर हमने कहा था कि आप इसको काइनेमेटिक की इक्वेशन से ही डिराइव करते हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर है इट इज एप्लीकेबल इन एनी सिचुएशन, राइट? तो यहाँ पर टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं. इट इज u sin theta over g, right? U is the initial velocity with this theta, that is आपने एक component of velocity रखा है. So U was 15 with this sine 60 over gravity, that is 9.81. Put these values in your calculator and आपको पता चल जाएगा इस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, राइट? एंड क्योंकि आपने जी की वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में रखी है, स्पीड स्टैंडर्ड यूनिट में रखी है, तो टाइम भी अपने स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड्स में आ जाएगा. It's going to be 1.3 seconds. Then explain why the horizontal component of velocity of the ball remains constant as it moves to the wall.
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों चेंज नहीं हो रहा? प्रोजेक्टाइल में हम बेसिक एक बात पढ़ लिया करते थे कि आप फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं। आप यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्रिक्शन की एब्सेंस है, आपने प्रॉपर आइडिया देना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही बॉल पर, राइट? तो आप लिख दें नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. Show that the ball strikes the wall with a horizontal velocity of 7.5 meters per second. मुझे वेलोसिटी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता है, इट इज 15 meters per second. एंड मुझे एंगल भी पता है, इट इज 60 degree. Okay, so this theta is also 60 degree and मुझे प्रूफ करना है कि x component of velocity is 7.5 meters per second. How do we write x component? Generally हम लिख लिया करते थे it would be the resultant साथ में cos या sin of theta. Cos आएगा या sin आएगा, it depends कि आप कौन सी इंटीरियर एंगल को कंसिडर कर रहे हैं एंड आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसिडर कर रहे हैं. यहाँ पर इन्होंने इस तरह मेंशन की थी डायग्राम में वेलोसिटी 15 meters per second. सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कहलाएगा. ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री. लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस ट्राइंगल हियर. सी दिस इज 90, तो ये दरमियान वाली साइड होनी चाहिए बेस. दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर एंड दिस शुड बी हाइपोटेनस. वेलोसिटी यानी हाइपोटेनस गिवन है, एक्स कंपोनेंट यानी कि ये बेस आपको कैलकुलेट करनी है. सो कौन सा रिलेशन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हाइपोटेनस और बेस को रिलेट करता है? इट इज cos थीटा, राइट? सो यहां पर यू शुड बी राइटिंग cos थीटा. दिस इज वेयर जहां पर हम एग्जाम में गलती कर देते हैं, राइट? मैंने ये तो देखा कि ठीक है कॉज आ रहा था, लेकिन मैंने प्रिज्यूम कर लिया कि कॉज मल्टीप्लिकेशन में ही आ रहा था. सी प्रॉपर स्टेप्स करें एंड देन यू शुड बी एबल टू नो कि यहाँ पर मुझे प्रॉपर कौन सा फार्मूला लिखना है, राइट? बिकॉज सी cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनस. हाइपोटेनस इज गिवन एंड बेस आपने कैलकुलेट करनी है. So we'll write base equal hypotenuse times cos theta. Base is the x component. So we'll write ux equals hypotenuse is this resultant here, which is u, जिसको खैर ऊपर हमने v का नाम दे दिया था, but as long as आपको पता है कि आप किस वेरिएबल से किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, इट वुड वर्क, राइट? नहीं तो आप चाहें तो आप इसको vx कह दें एंड आप इसको v कह दें, राइट? एंड देन दिस cos थीटा here. So this equation made it clear कि मैंने यही equation लिखनी है जो मैंने अभी लिखी है, right? I had to mention this point here because most of the time हम presume कर लेते हैं कि अगर x component है तो इसके साथ cos theta ही आएगा and multiplication में ही आएगा. Whereas there are cases जहाँ पर x component के लिए आपको sin लगाना पड़ेगा या जहाँ x component के लिए आपको cos theta ही लगाना पड़ेगा but multiplication में नहीं, आपको division में लगाना पड़ेगा. So just always make sure कि आप वेक्टर के इस केस में कहीं पर भी ना फंसे बिकॉज एग्जामिनर बहुत सारे एमसीक्यू में एंड बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं आपको वेक्टर रिजॉल्व करने को देगा, राइट? सो नाउ दैट वी नो कि दिस इज द सेम फार्मूला वी शुड बी यूजिंग हियर. जस्ट पुट दीस वैल्यूज u या v, it is 15 cos of 60. Put these values in your calculator and you will get 7.5 meters per second, what you were asked to prove, right? Then mass of ball in B is 0.40 kg. It is in contact with the wall for a time of 0.12 seconds and it rebounds horizontally with a speed of 4.3 meters per second. Speed of rebound is 4.3 meters per second. Use this information and the information from part B to calculate the change in momentum of ball. What is change in momentum? Momentum is the product of mass and velocity, right? So change in momentum should be the product of mass and change in velocity, right? Because change in mass nahi main likh sakti, mass remains constant. Mass itself is given to be 0.40 in the base unit, that is kilogram. Change in velocity क्या रखूं? यहाँ मुझे पता चला है कि प्रोजेक्टाइल के पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी
रिजल्टेंट उसका 15 था बट उसका एक्स कॉम्पोनेंट 7.5 था। यहाँ पर हमें चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है एंड इन्होंने आपसे कहा है बॉल रीबाउंड की हॉरिजॉन्टली। सो फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल में मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है, राइट। सो इनिशियल भी मुझे हॉरिजॉन्टल ही प्लेस करना है, राइट। सो जब मैं चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगी तो फाइनल इज 4.3, इनिशियल वाज 7.5। बट आपको ये बात याद रखनी है, इन्होंने कहा है बॉल रीबाउंड कर रही है। इसका मतलब है अगर ये पहले ये वॉल की तरफ गई थी तो अब ये वॉल से अवे जा रही है। एंड आपको पता है वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसमें आपको इसकी डायरेक्शन को कंसिडर करना ही करना है। सो इट इज अप टू यू, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव का नाम दें एंड दूसरे को नेगेटिव असाइन कर दें। मैं फिलहाल के लिए व्हेन दी बॉल वाज मूविंग टुवर्ड्स दी वॉल मैं उसको नेगेटिव असाइन कर रही हूँ एंड देन जाहिर है फिर अवे के लिए मैं पॉजिटिव असाइन करूंगी। इसका मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी थी जो अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में कैलकुलेट की है 7.5, आई विल टेक इट टू बी -7.5। और फिर जो रीबाउंड होकर वेलोसिटी आई विल टेक इट टू बी +4.3। चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखूंगी? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 4.3 माइनस initial, which is -7.5. So it will give me 4.3 plus 7.5. So first add these two values and then multiply it with mass. You will get 4.7 and change in momentum है ना, इसका वही यूनिट होगा जो मोमेंटम का अपना यूनिट होता है, दैट इज मास का यूनिट टाइम्स वेलोसिटी का यूनिट, राइट। अच्छा, अगर आप यहाँ पर कन्वेंशन चेंज करेंगे, आप राइट के लिए पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट के लिए नेगेटिव लेंगे, तो आपके पास वैल्यू अभी भी सेम आएगी, बस साथ में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट। Calculate the magnitude of average force exerted on the ball by the ball. Now that we know the change in momentum of ball, we've calculated it to be 4.7, right? So change in momentum was 4.7 kilograms into meters per second. Time of contact भी हमें बता दिया था पिछले पार्ट में, it was given to be 0.12 seconds. And we are asked to calculate average force. अभी पिछली वीडियो में हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन ऐसे किया था कि it says that the rate of change of momentum equals the resultant force, right? So यहाँ पर you know the change in momentum, you know the time जो इस momentum को change होने में लगा and you are to calculate the force. It is not very difficult to do, right? So what you have to do is just divide these two values and you will get the value of force, which is around 39 newtons. Then the next question we have is they are asking explain what is meant by work done. Work done is the product of force and displacement in the direction of force, right? So make sure that you mention the direction wala point as well. See, work done itself is a scalar physical quantity. It does not have a direction. But इसकी definition में जो आपने displacement को mention करना है, this displacement should be in the same direction as that of force, right? Then आपसे कह रहे हैं a ball of mass 0.42 kg, mass is given 0.42 kg. It is dropped from the top of a building, that is इसकी initial velocity is 0. Ball falls from the rest through a vertical distance that is height 78 meter to the ground. Air resistance is significant, you cannot ignore it in this case. So the ball reaches terminal velocity, that is drag बढ़ते बढ़ते finally weight के बराबर हो गया before hitting the ground. Ball then hits the ground with a speed, यानी final speed with which it is hitting the ground is 23 meters per second. Calculate for the ball falling from the top of the building to the ground. First of all, decrease in the potential energy. Decrease in gravitational potential energy should equal force of gravity time the distance in the direction of gravity, that is vertically downward or vertically upward, right? So force कैसे आएगी? gravitational force weight होता है, right? Weight of the object is the force of gravity acting on the object. So it is always the product of mass and gravity. Mass at 0.42 and gravity is not given, but it is obvious that it is 9.81. And then you will take distance. इन्होंने आपसे कहा है top से
ग्राउंड तक आने में इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है विच इटसेल्फ इज द वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज 78 meters, राइट? आप यही 78 meters यहाँ पर प्लेस करेंगे. Just multiply these three values and you will get 320 joules, right? Because energy is measured in joules. This is the decrease in gravitational potential energy. Decrease क्यों कहा? Because C object की separation कम होती जा रही है अर्थ से, right? So height पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. खैर, जो अभी तक हम जो कॉन्सेप्ट अपने लेवल पर कंसिडर करते हैं उसके हिसाब से. अदरवाइज यस ऑफ कोर्स देयर इज एन आइडिया कि ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो ग्राउंड पर भी जीरो नहीं होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. खैर, फिलहाल के लिए दिस इज इनफ. चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 320 जूल. नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 320 था, अब इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी भी बताएं. अगर तो मैं कहती कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल थी, तो उस केस में मैं कहती जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया है, किनेटिक एनर्जी में उतना ही इंक्रीज आया होगा. तो मैं बगैर किसी कैलकुलेशन के कह देती इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी वुड बी 320 जूल. बट दिस इज नॉट द केस हियर, बिकॉज जाहिर है ऑब्जेक्ट के पास जब वो एक सर्टेन हाइट पर था 78 मीटर्स पर, तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, राइट? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, एक तो फ्री फॉल था तो अब इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो किनेटिक एनर्जी यस इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन साथ साथ एयर रेजिस्टेंस भी है ना जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रही है. तो कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ वर्क डन कर रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स एंड कुछ किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो एक बात तो तय है, किनेटिक एनर्जी में डिक्रीज 320 आया था, तो किनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल में सॉरी डिक्रीज आया था 320 जूल. तो किनेटिक एनर्जी में 320 के मुकाबले में कोई स्मॉलर वैल्यू आएगी, इतना इंक्रीज आया होगा, राइट? बिकॉज बाकी का जो पार्ट बच गया होगा वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करेगा. So now we have to calculate increase in kinetic energy. Increase in kinetic energy is again it's half m velocity में कितना इंक्रीज आया इसका स्क्वायर, राइट? इनिशियली जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ है टॉप से, इस पॉइंट पे इन्होंने कहा ड्रॉप किया, राइट? इसकी स्पीड 0 है. एंड फाइनली जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक किया है विद द टर्मिनल वेलोसिटी 23 meters per second, तो इसका मतलब है मुझे चेंज इन वेलोसिटी पता है. It is final minus initial, that is 23 minus 0, and then you will square because kinetic energy is half mv square. Mass is given to be 0.42. First of all, square this 23, then multiply it with 0.42 and divide it with 2. You will get 110 joules, right? इसका मतलब है किनेटिक एनर्जी में चेंज आया 320, इसमें से 110 जो एनर्जी थी वो तो किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जो पोटेंशियल में डिक्रीज आया था. बाकी की जो एनर्जी है दैट इज 210 जूल्स. ये वो एनर्जी है which was utilized in doing work done against friction. बिकॉज फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रही है बट बॉल तो उसके बावजूद भी डाउनवर्ड ही मूव कर रही है इसके एक्सपेंस पर, राइट? अब आपसे कह रहे हैं यूज योर आंसर इन बी, दैट इज चेंज इन किनेटिक एनर्जी इज 110 to determine the average resistive force acting on the ball as it falls from the top to the building of the building to the ground, right? Resist फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा वो नहीं निकालने को कहा, आपसे कह रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड आप हमें निकाल के बताएं. सी, पहले तो आपने इन दोनों के डिफरेंस से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाल दिया, फिर हमने कहा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन शुड इक्वल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन times the displacement that the object covered while opposing the friction, right? So work done against friction is already calculated right here, it is 210 joules. Force of friction we need to calculate, and इस friction को oppose करते हुए object ने कितना distance travel किया है, top of the building से bottom तक आया है, that is 78 meters का distance travel किया है. So we'll just rewrite this equation to make this the subject of our equation. Force of friction will become 210 over 78. That is 2.7 Newton.
राइट जो मेजर गलती मैंने नोट की है बच्चों की, देव डायरेक्टली टेकन या तो 320 टू बी दी वर्क डन यहाँ पर, जो कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, या फिर देव टेकन 110 टू बी दी वर्क डन यहाँ पर, राइट। आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है तो यू नीड टू प्लेस दी वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। सो yes, this is the right answer to this question. And then in the last part, they are saying that the ball in B is dropped at time t equals 0. Drop किया गया था, right? इसकी velocity भी 0 थी and इस point पे gravitational acceleration ज़ाहिर है maximum होगा। And आपसे कह रहे हैं फिर time कैपिटल T पर इसने ग्राउंड को हिट किया, फ्री फॉल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा था, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और आपसे कह रहे हैं कि आप मुझे एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ उसका एक ग्राफ बनाकर बताएं। द पॉइंट हियर इज एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस के बारे में क्या कमेंट है, इग्नोर करना है या नहीं करना है? क्वेश्चन में ये ऑलरेडी बता चुके हैं ना कि आपने इग्नोर नहीं करना, तो आपने थ्रू आउट एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करना ही करना है। अगर तो मैं एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर ना करती तो मैं कहती फ्री फॉलिंग, अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देती, राइट, तो मैं कहती कि रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो जो वाहिद फोर्स है वो तो ग्रेविटी की फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा और ये जो हमारे पास ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ड्रैग को इग्नोर नहीं किया जा सकता, स्टार्ट में तो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा व्हिच इज द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, लेकिन अपवर्ड ड्रैग बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फॉलोइंग द डिस्क्रिप्शन, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जितनी बार मैं टर्मिनल वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी एंड उसकी वजह से एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, राइट, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, राइट। तो हमने कंक्लूड किया कि इन दी डाउनवर्ड मोशन एक्सेलरेशन स्टार्ट तो 9.81 से होगा बट देन इट वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग, राइट। सो मैंने ग्राफ को स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, मैंने ग्राफ को डिक्रीज करता हुआ शो करना है, राइट, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट मैंने बताना है, यहाँ पर टाइम के साथ एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। देन जो मुझे एक और बात यहाँ पर जहन में रखनी है वो ये कि आपसे कह रहे हैं कि आपने कैपिटल टी तक बनाना है, कैपिटल टी इज द टाइम जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर पहुंचा है, लेकिन पीछे क्वेश्चन में इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि ग्राउंड में पहुंचने से पहले ही ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो चुकी है, राइट। इसका मतलब है टाइम टी से पहले किसी टाइम पर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऑलरेडी 0 हो चुका है, राइट। सो मैं जो ग्राफ बनाऊंगी डिक्रीजिंग स्लोप के साथ, आई नीड टू मेक श्योर कि वो कैपिटल टी से पहले खत्म हो जाए। मैं अगर यहाँ पर ये ग्राफ बनाऊंगी सो इवन दो ग्राफ का स्लोप अभी भी डिक्रीजिंग है, लेकिन क्योंकि मैंने ये मेंशन नहीं किया कि ये ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले एक्सेलरेशन 0 कर चुका था, तो ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी गेटिंग द मार्क्स फॉर दिस ग्राफ। So I hope this makes sense here. Then state the principle of movement. What is the principle of movement? For an isolated system, the net torque acting on the object is 0. That is, clockwise torque should equal anti-clockwise torque for an object in rotational equilibrium, right? Do not forget to mention this point. फिर आपसे कह रहे हैं in a bicycle shop, two wheels hang from a horizontal uniform rod A to C as shown in this figure. Since they've mentioned रॉड यूनिफॉर्म है, तो जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें तो हम कहते हैं कि जो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल उसके सेंटर पर लाई करता है, राइट। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट जिस पर ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट करता है। इसका मतलब है ये जो रॉड है 19 न्यूटन का, इसका अपना पूरा का पूरा वेट 19 न्यूटन वुड एक्ट एट द सेंटर ऑफ दिस रॉड, दैट इज एट दिस पॉइंट बी। फिर आपसे कह रहे हैं रॉड हैज द वेट 19 न्यूटन एंड इज फ्रीली हिंज्ड टू अ वॉल एट एंड ए, the other end C of the rod is attached by a vertical elastic cord to the ceiling. Center of gravity of rod is at point B because ज़ाहिर यूनिफॉर्म है बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा। Weight of each wheel is W and the tension in the cord is 22 Newton. By taking moments about end A, keep this thing in mind, show that the weight of each wheel is 14 Newton. दोनों व्हील का इन्होंने कहा वेट बराबर है, राइट। आपको प्रूफ करना है कि दोनों का
जो वेट है वो 14 न्यूटन के बराबर है। एंड आपको मोमेंट जो कंसिडर करना है वो पॉइंट ए के अराउंड कंसिडर करना है, राइट। ये बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी। उसके अलावा इन्होंने ये बताया है कि रॉड जो है वो फिक्स है, इट इज नॉट मूविंग, राइट। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन यकीनन फुलफिल हो रही होगी। क्लियर। तो सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स should equal sum of anti-clockwise torques। मुझे सबसे पहले पिवट पता होना चाहिए, इन्होंने बता दिया पॉइंट ए के अबाउट। ठीक, जब मुझे पिवट पता चल जाता है तो फिर मेरा दूसरा जो स्टेप होता है वो ये फाइंड आउट करना होता है कि कितनी फोर्सेस हैं, उसकी वजह से कितने टॉर्क्स लग रहे हैं, और इन लगने वाले टॉर्क्स में से कितने क्लॉकवाइज हैं और कितने एंटी क्लॉकवाइज हैं। वो कैसे पता करते थे? हमने एग्री किया था कि आप फोर्स की डायरेक्शन को एक्सटेंड करते हैं एंड फिर आप उसको रोटेट करते हैं टूवर्ड्स दी पिवट, और आप देखते हैं ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, डाउनवर्ड फोर्स है, आप इसको एक्सटेंड करें टूवर्ड्स पिवट, सी इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब है ये जो W है ये तो क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है, तो मैं कहूंगी एक क्लॉकवाइज टॉर्क मेरे पास किसकी वजह से आ रहा है? TW। then we have this right here, weight of the rod that is acting at this point। अगर ऑब्जेक्ट का वेट जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है उसी पॉइंट को हम एक्सेस ऑफ रोटेशन या पिवट कंसिडर कर लेते हैं, तो फिर तो हम वेट की वजह से टॉर्क को इग्नोर कर देते हैं, राइट, बिकॉज मोमेंट आर्म जीरो हो जाता है। लेकिन इस केस में पिवट यहाँ पर है एंड वेट यहाँ पर एक्ट कर रहा है, इसका मतलब है मैं यहाँ वेट की फोर्स को भी कंसिडर करूंगी। वेट की फोर्स की वजह से भी एक टॉर्क लगेगा, राइट। उसकी डायरेक्शन देख लें, सी इट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज में एक और टॉर्क ऐड करूंगी, दैट इज ड्यू टू दी weight of the rod। What should I be calling weight of the rod? Let's just label it with tau r। Then दूसरा भी व्हील है, अगेन इसको भी एक्सटेंड करें, फोर्स की डायरेक्शन को पिवट की तरफ टर्न करें, इट इज अगेन क्लॉकवाइज। So you'll write tau w again, but let's just differentiate them। Let's just call this W1 and let's call this W2। ठीक है। Then we have another force, this force is upward। again आप upward arrow को extend करें and आप इसको pivot की तरफ rotate करवा दें, it is obvious that it is anti clockwise। तो ये जो हमारे पास चौथी force है इसकी वजह से जो torque आ रहा है that is torque due to chord, this is anti clockwise। clear। अब देखें, आपको W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेट की वैल्यू, राइट। W1 और W2 दोनों व्हील्स का वेट बराबर है, राइट। सो W1 और W2 की तो वैल्यू बराबर आएगी। द रीजन आई मेंशन्ड 1 एंड 2 हियर बिकॉज इवन दो इन दोनों का वेट बराबर है बट इनका पिवट से डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो मुझे इनको डिफरेंशिएट करना था, राइट। सो आई रोट W1 एंड W2। व्हाट यू कैन डू इज आप इसको टाउ डैश, आप इसको टाउ डबल डैश कह दें, चाहे तो 1 और 2 के सब्स्टिट्यूट को हटा दें, दैट इज अप टू यू, राइट। सो लेट्स जस्ट डू दिस 1 और 2 ताकि आपको ये कंफ्यूज ना कर दें कि W1 की वैल्यू अलग है एंड W2 अलग है, राइट। देन वैल्यूज प्लेस करें। जब आप इसका टॉर्क रखेंगे तो आपने इसका वेट रखना है, फोर्स विच इज W, एंड आपने इसकी सेपरेशन रखनी है फ्रॉम पिवट विच इज दिस डिस्टेंस गिवन टू बी 0.45 मीटर्स, प्लस जब आप रॉड की वजह से टॉर्क रखेंगे तो आपने रॉड का अपना वेट रखना है, दैट इज 19 न्यूटन, एंड साथ में आपने इस रॉड वाले पॉइंट का पिवट से कितना डिस्टेंस है वो रखना है, राइट। क्या हमें टोटल डिस्टेंस इन्होंने यहाँ पर बताया है? नो, दे डिड नॉट टेल अस कि पॉइंट बी तक का डिस्टेंस क्या है, बट मुझे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पता चल रहा है 0.45 प्लस 1.40 प्लस 0.75 which equals 2.6। इसका मतलब है टोटल जो रॉड की लेंथ है इट इज 2.6, रॉड का वेट बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, दैट इज 2.6 का बिल्कुल हाफ, दैट इज 1.3। तो मुझे रॉड का वेट जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है इसके लिए मुझे मोमेंट आर्म भी पता चल गया, इट इज 1.3 प्लस, अब ये थर्ड फोर्स रखें, इसके लिए आप ये जो दूसरा व्हील है इसका वेट रखें विच इज दी सेम। चले मैं इधर लिख लेती हूँ बिकॉज एडिशन को तो फर्क नहीं ना पड़ता कि आप किस साइड पे लिख रहे हैं। सो
ये आ गया मेरे पास वेट टाइम्स इस फोर्स का मोमेंट आर्म से जो सेपरेशन है आप वो रखेंगे एंड इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फिगर दैट दिस सेपरेशन इज 0.45 प्लस 1.4 which is 1.85 राइट। ये आ गया हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क। दूसरी तरफ यू नीड टू राइट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इट्स नॉट प्लस, इट इज इक्वल, राइट। फोर्स क्या है इस कोड की वजह से, इट इज 22 न्यूटन एंड जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेपरेशन कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ रॉड, दैट इज 2.6। नाउ 1.85 times W plus 0.45 times W, this will give you 2.3 W, राइट। बस दोनों का आपने ऐड कर लिया एंड देन दूसरी साइड पे भी ऑलरेडी हैड 22 into 2.6, ये जो फैक्टर था 19 into 1.3, ये लेफ्ट साइड पर ऐड हो रहा था, राइट पर जाकर हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया एंड देन मुझे तो W की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये जो 2.3 से मल्टीप्लाई हो रहा है मैं इसको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करवा देती हूँ। Put these values in your calculator and आपको weight of one single wheel पता चल जाएगा, right? And it would turn out to be 14 Newton because weight है ना तो it should be in newtons. See, आपको प्रूफ करना था कि weight of each wheel is 14 Newton. And direction क्या है? Weight is always directed vertically downward. Weight के बारे में ही पूछ रहे हैं direction. सी डायरेक्शन में ये यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं एंड ए पर जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन बताएं। ये था रॉड, राइट। यहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स लग रही थी 22 न्यूटन, यहाँ पर व्हील था टर्न आउट टू बी 14 न्यूटन की फोर्स, ये उसका अपना वेट था विच वाज 19 न्यूटन एंड यहाँ पर एक और व्हील था विच वाज 14 न्यूटन, राइट। 3 डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं, आप सम करें 14 प्लस 19 प्लस 14 एंड एक अपवर्ड फोर्स लग रही है। अगर उसके बावजूद भी रॉड इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि एंड ए पर भी एक फोर्स लग रही होगी, राइट। उस फोर्स की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, अगर आप डाउनवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव ले लें और आप अपवर्ड को नेगेटिव ले लें, इट इज अप टू यू, राइट। सो हम कहेंगे बाकी ये सारी फोर्सेस जो हैं ये हमारे पास ऐड हो गई। अपवर्ड के लिए आप साइन चेंज करके लिख लें, इट इज -22। आपको पता चल जाएगा इस पॉइंट पर कौन सी फोर्स लग रही है, राइट। उसका आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। या दूसरा और कंपेरेटिवली आसान तरीका क्या है, आपको पता है इस रॉड पर 3 डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी रॉड इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है अपवर्ड फोर्सेस मस्ट इक्वल डाउनवर्ड फोर्सेस। डाउनवर्ड फोर्सेस हैं 14, 19 and then 14, total will give you 47, राइट। 47 न्यूटन की डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, हालांकि अपवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है, सिर्फ 22 न्यूटन। तो अगर उसके बावजूद भी रॉड इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है 22 के बाद बाकी की जो 25 न्यूटन फोर्स है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही लग रही होगी पॉइंट ए पर, right? So magnitude I'll write 25 so that this gives you 47, this also gives you 47, right? And direction I'll write upward ताकि rod equilibrium में रहे। And then we have एक और part deformation वाले topic से, unstretched length of chord in B is 0.25 मीटर। वहां पर उन्होंने मेंशन किया था ना कि एक कोड से एक एंड पर हमने रॉड को जो है वो 22 न्यूटन की फोर्स लगा के बैलेंस किया हुआ। आपसे कह रहे हैं उस कोड की जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, यानी जब आपने कोई फोर्स उस पर नहीं एक्सर्ट की, तो इट इज 0.25 न्यूटन मीटर्स, राइट। एंड जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं जाहिर है इलोंगेशन हो रही है एंड वैल्यू चेंज होती जा रही है। सी स्टार्ट में जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाई उस टाइम पर लेंथ है 0.25 मीटर्स। आपसे कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन whether figure suggests that the code obeys Hooke's law or not. Hooke's law says that stress is directly, the force is directly proportional, yet the elongation is directly proportional to force, right?
इट सेज कि जब भी आप फोर्स एलोंगेशन का प्लॉट बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी। द ग्राफ हियर क्लियरली शोज के दोनों के दरमियान रिलेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, राइट। सो इसका तो आंसर हम यस में दे देंगे कि यस द ग्राफ शोज दैट द कोड ओबेज हुक्स लॉ। एंड आगे आप मेंशन कर दें बिकॉज देयर इज अ स्ट्रेट लाइन रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड एलोंगेशन। देन आपसे कह रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करके बताएं। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हम हुक्स लॉ की इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमें कैलकुलेट करना है, F is the applied force and this X is the elongation as the result of applied force. This X is not the total length या the original length of the object. This X is the change in length of the object, right? So question में तो इन्होंने मुझे ना कोई force की value दी है numerical, ना इन्होंने change in length बताया, original length बताई थी, change in length तो नहीं बताई, लेकिन information के लिए इन्होंने आपको graph दिया। ग्राफ से आप एक काम करें, कोई भी वैल्यू ऑफ लेंथ लें जो आपके लिए रीडेबल हो। मैंने 0.50 ले ली, राइट। एंड इस लेंथ पर देखें आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या है, सी इट इज 20। यानी मैं कहूंगी जब फोर्स है 20 न्यूटन तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ है 0.50। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ फॉर्मूला में जो आप x रखेंगे दिस शुड नॉट बी द टोटल लेंथ, दिस शुड बी द इलोंगेशन। तो जब ओरिजिनली थी 0.25, एलोंगेट होकर इट इज 0.50, इसका मतलब है इलोंगेशन कितनी है 0.25 meters की, right? Now that we know f and we know x, place this in the rearranged formula, that is f over x 20 over 0.25. You will get to know the spring constant of the, you will get to know the constant for this code. See, as per the scheme, 80, which of course is the correct answer in our case as well, is the answer. See, force is in Newton and this extension is in meter. तो spring constant का unit होना चाहिए newtons per meter. Then आपसे कह रहे हैं फिगर में शेड करें the area that represents the work done to extend the code when tension is increased from 0 to 40. टेंशन जब 0 से 40 तक इंक्रीज की गई है, दिस इज द एरिया, बिकॉज यहाँ पर टेंशन इज 0, यहाँ पर इट इज 40 एंड जो आपने एरिया लेना है वो प्लॉट के अंडर जो एरिया आ रहा है आपने वो एरिया लेना है, राइट। दिस एरिया represents the work done. Do we have any other part from this question? No, we don't. Okay, ji, this is all from my side in this lecture. I hope it made sense to you and you learned something from this lecture. Till the next lecture, Allah Hafiz.